Hello students, welcome back to Snehway Classes Ace Your Economics. Today we are here with the numericals of chapter number 4, which is measurement of national income. So basically there are three methods. Let us, without any delay, start bang on. First method, value addition method. First we will quickly revise the formulas. First of value addition method, then we will solve the numericals. Then income and expenditure method, numericals, and then the expenditure method and the numericals. Okay, so the value added method. Please bear with the handwriting. Yes, okay, so what do we get in this method? We get GDP at market price. Why do we get GDP? Because we have not excluded the depreciation. That is why we get GDP. Why at market price? Because we take the sales figure, okay, and not the factor cost. So what is GDP at MP? It is equal to, according to value added method, it is equal to value of output minus intermediate consumption. So what has to be included and what not in intermediate consumption, that we have done in the class. Again, I am quickly revising. If it is given intermediate consumption, take that. If it is given domestic intermediate consumption and import is given separately, include both, add both of them. Okay, what is value of output? It is sales. Basically value of output means कितना हमने मैन्युफैक्चर किया, तो हम कितना मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, which is closing stock minus opening stock, okay, minus intermediate consumption. Okay, again sales, if total sales is given, take that. If domestic sales is given and export is given separately, add them. Okay, so let us begin the numericals. So we are doing the unsolved practicals of Mr. Sandeep Garg book. Question number 4, unsolved practicals, question number 4. So calculate NDP at FC, and these details are given. Here it is mentioned that it is a question of value added method, but in the exam it will not be given. So by seeing the figures, you are seeing sales, you are seeing closing stock, opening stock, okay, and okay, fine. So it is quite clear that we will have to calculate with the value added method, in which GDP at MP is calculated, which is equals to sales plus change in stock minus intermediate consumption. You can go one step further and you can write here GDP at MP is equal to value of output minus intermediate consumption. Okay, you can add this step. Next, sales is 100 plus change in stock. Change in stock is what? Closing stock, which is 10, minus opening stock, which is 20. Again, you can include one more step by saying that sales plus change in stock is what? Closing stock, add one more bracket, closing stock minus opening stock, okay, minus intermediate consumption. Minus intermediate consumption 30. Okay, so you are getting 60. And now we have to find NDP at FC. NDP at FC from GDP at MP. So from gross to net, we have to go from gross to net. So we will exclude depreciation. From market price, we have to go to factor cost. So we will reduce net indirect taxes, which is equals to 60, minus depreciation or consumption of fixed capital, as it is famously known as, minus net indirect taxes. What is net indirect taxes? Indirect tax, again you can include one more step saying that net indirect taxes is indirect taxes minus subsidies. Okay, what is indirect tax? How much it is? 5. And how much is the subsidy? 1. So ultimately we are getting 60 minus 15 minus 4. So 60 minus 19, which is 41 crore rupees. Okay. So it was a very basic question. We took a little more time in this. All these formulas and steps you have to show in every question. But since we have a number of questions, so we'll quickly see the sums. Next, calculate the value of output from the following data. Now, as soon as they mention value of output, हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये तो value added method है जिसमें GDP at MP is equals to value of output minus intermediate consumption. ठीक है, लेकिन ये GDP at MP कहाँ से आएगा? ये GDP at MP कहाँ से आएगा? देखिए
net value added at factor cost is given. So we have to find GDP at MP और हमको क्या दिया हुआ है, net value added at factor cost. तो नेट से ग्रॉस में जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 250 प्लस 30 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज जीएसटी जो है ये जीएसटी 20 minus 10. Okay, so you get 290, and here again if we come back, 290 is equals to value of output minus intermediate consumption, which is given as 150. So what will be value of output from here? Value of output is equal to 290 plus 150, which is equal to 440 rupees in lakhs. Please don't do any mistake in writing the units. If it is rupee, in most of the cases it will be rupee, because we are just talking about India's calculation. And check if it is lakh or crores. Okay, next. Calculate the value of output and the gross value added at market price. What do we have to calculate? Gross value added at market price and value of output. So GVA, or we known as gross domestic product at market price, is equal to value of output, which we have to find, minus intermediate consumption. What is value of output? Value of output is also, if we break the formula, it is sales plus change in stock, closing minus opening stock. Yes, so how much is the sales? Sales is given 10,000. How much is the closing stock? It is 800. And how much is the opening stock? 1000. So basically it will be 9800, value of output C. And GVA at MP will be 9800 minus intermediate consumption or purchase of raw material, which is also known as intermediate consumption, is 200. So it will be 9600. Next, calculate sales. Again, question number 7 is easy. You'll be able to do it, I'm sure. Question number 8. Calculate net value added at factor cost. We have to find net value added at factor cost. Yes, as per the details, it is quite clear that we will find GDP at MP as per the value added method, which is equal to sales. And what is sales? Output into price. Please write the formulas in the exam. We are quickly doing because we have plenty of sums to solve. Output is how much? 2000. 2000 into 10. This is the sales. Plus change in stock. Plus change in stock is minus 50. Minus intermediate consumption, which is intermediate cost, is 10,000. Yes. So it will be 20,000 minus 50 minus 10,000, which will be, it will be 9,000. This would be 10,000, this would be 9,950. And net value added at factor cost we have to find out from GDP at MP. Gross से net पे जाना है, depreciation deduct कर दो. Market price से factor cost में जाना है, net indirect taxes, which is equals to 9950 minus depreciation, consumption of fixed capital 600, net indirect taxes 400 minus subsidy 500. So it will be 9450 rupees. Okay, they have not mentioned, okay, they have mentioned the units, rupees. Okay, okay. Next, similarly question number 9. Simple है, similar है, 10 भी similar है, 11 हो जाएगा. आइए हम लोग देखते हैं 13. Directly we will start question number 13. So they have given us, you are given the following information about 4 producers A, B, C and D in the economy. A sells 300 worth of his output to B. चलो हम लोग इसको diagrammatically represent करना शुरू करें. A sells to B कितना? 200. 300 to B and 200 to C. 300 to B and 200 to C. Next, 500 to households. 500 to households.
households. Okay. Next. The sales of B to A, C and D are 400, 200, 300. 400, 200, 300. Next. C sells to A, B and D worth rupees 100 each. A 100, B 100 and D 100. D किसको सेल करता है? Sales by C to households are 900, okay, and D sells to household worth rupees 700. So C दे रहा है 900 to households and D दे रहा है 700. Okay. Next. His exports यानी D की बात कर रहा है worth rupees 300 while stock is 200. Export 300, 200 is stock, closing stock. अब देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं. Estimate the value added by A, B, C and D respectively and all of them together. आइए देखते हैं. Value added by A. सबसे पहले देखेंगे for A value of output minus input. Value of output कहाँ है? B को 300 प्लस C को 200 प्लस हाउसहोल्ड को 500 माइनस आ कहाँ से रहा है? C से आ रहा है 100, B से आ रहा है 400. ओके, दैट्स इट. सो हाउ मच विल इट बी? 500. ओके ओके. नेक्स्ट B, sorry, we're talking about B now. B आउटपुट देखेंगे और इनपुट माइनस कर देंगे. सिमिलरली सी का आउटपुट देखेंगे और इनपुट माइनस कर देंगे एंड डी के लिए भी ऐसा ही करेंगे. आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. ऑल ऑफ देम टुगेदर, फिर उन सब के आउटपुट को ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम टुगेदर. ओके, प्लीज डू इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लीज व्हाट्सएप मी 9931441133. पॉज करो वीडियो, फटाक से एकदम उसको सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, छोटा सा उसमें नई चीज है. उसमें टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है. बच्चों टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो फाइनली हाउस होल्ड या प्राइवेटली लोग उसको, प्राइवेटली नहीं कहेंगे, प्राइवेट हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करते हैं. तो क्वेश्चन में अगर हम लोग पढ़ें, सपोज फर्म ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू बी फॉर इतना एंड टू सी फॉर इतना. फर्म बी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट पार्टली टू प्राइवेट कंज्यूमर्स, ये है प्राइवेट कंज्यूमर्स 800 एंड द रिमेनिंग वॉज एक्सपोर्टेड. फर्म सी पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन. देखो पब्लिक कंजम्पशन आ गया ना, इसको भी बॉक्स में डाल दो. तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा? ये प्राइवेट कंज्यूमर्स और पब्लिक जो उसको फाइनली पब्लिक या प्राइवेट कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करेंगे उसको कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 800 प्लस 500 विच इज 1300. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू इनकम मेथड. फटाफट मैं इसका फॉर्मूलाज आपको बता देती हूँ. सेकेंड मेथड, इनकम मेथड. सबसे पहली बात इसमें निकल कर क्या आता है? इसमें आता है NDP at FC. वाई एट FC? क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं इसमें उनको ऐड करते हैं. नेट क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का दूर दूर तक कहीं कोई रोल नहीं होता. होता क्या है ये? NDP at FC अकॉर्डिंग टू द इनकम. कई बार इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड टू बी मोर अप्रोप्रिएट इसको ऐसा ही कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, तो NDP at FC क्या होगा? दिस इज इक्वल टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम. ओके, compensation of employees is equals to wages and salaries in cash plus in kind. ठीक है, प्लस एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द एम्प्लॉयज. ओके, सिक्योरिटी स्कीम्स
फॉर एम्प्लॉयज. ऑल दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर. फटाफट रिवाइज कर रहे हैं. ओके, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट. इनकम ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट को कलेक्टिवली नेम किया गया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. वो पार्ट ऑफ अर्निंग्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अगर सिर्फ प्रॉफिट दे दिया तो ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज टू बी टेकन. ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देता है, टैक्स अलग से देता है, कंफ्यूज करने के लिए. कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. ओके, मन की भावना क्लियर रखनी है, इंटेंशन क्लियर रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके जी, हो गया. मिक्स्ड इनकम दे देगा, मिक्स्ड इनकम बाय प्राइवेट कंज्यूमर्स या कुछ इस तरह का नाम दे देगा, बट मिक्स्ड इनकम मेंशन करेगा. ओके जी, शुरू करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. कैलकुलेट नेशनल इनकम. बेटा एग्जाम में ना आपको ये बताएगा नहीं कि इनकम मेथड है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड है. ओके, आपको उसके जो डेटा दिए हुए उससे पता लगाना है कि है क्या. ये डेटा से साफ पता चल रहा है वेजेस है, ओल्ड एज पेंशन है, ये है वो है. ठीक है, तो क्या होएगा? NDP at FC विच इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ लिख के एक एक फॉर्मूला, फिर एग्जाम में अपने आप लिखना. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज. देखो ये रहा वेजेस एंड सैलरीज. ओके, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम्स लिख देना, प्लस ये वाला लिख देना पॉइंट. ओके, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम्स. ये तो हो गया हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से ही दे दिया है. ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से ही दे दिया है, यानी कि प्रॉफिट सब नहीं देखना. डिविडेंड तो प्रॉफिट में ही इंक्लूडेड होता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड होता है, तो डिविडेंड नहीं देखना, प्रॉफिट नहीं देखना. ओल्ड एज पेंशन का कोई काम ही नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और कुछ है नहीं. ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है? 200. ऐड कर दो फटाफट. मतलब मैंने यहाँ पे 900 और 200 लिख दिया, आपको पहले ऑपरेटिंग सरप्लस लिखना है, वो तो हमने लिख ही दिया. चलो, वेजेस एंड सैलरीज कितना है? 500 प्लस 50 प्लस 900 प्लस 200. कितना हो गया बच्चों? फटाफट कैलकुलेट करो. 1650. हमें निकालना है नेशनल इनकम. मैं चीख के क्लास में बता चुकी हूँ, नेशनल इनकम मतलब NNP at FC. ओके, NNP at FC निकालना है. किससे? NDP at FC से, यानी नेट. ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है. क्या करेंगे? ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1650 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10. आंसर क्या हो गया? 1640 रुपीज इन करोड़. रुपीज करोड़, 1640 रुपीज करोड़. ओके जी, ओके. क्वेश्चन 17 देख लेते हैं एक बार. NNP at FC निकालना है, वापस नेशनल इनकम निकालना है. क्या क्या चीज दिया हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है. ये हो गया आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. रेंट एंड इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, डिविडेंड ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, सॉरी डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है. सॉरी. रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रेंट रॉयल्टी है क्या? नहीं. इंटरेस्ट ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया. प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिख दो ऑपरेटिंग सरप्लस. कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है अलग से? नहीं दिया हुआ. और मैंने कहा था रिटेन्ड अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो कंपनीज अपने पास रख लेती हैं. ये देखो, ये प्रॉफिट का पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस. कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस. बच गया मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्या? ये रहा मिक्स्ड इनकम.
इन सारे फैक्टर्स को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP@FC। अब हमें निकालना है NNP@FC, यानी इस NDP@FC में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें जो कि डायरेक्टली दिया हुआ है -20, तो अगर हम -20 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है ना नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये वो सब इग्नोर यार भैया, साथ में साथ क्लियर दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिमाग नहीं लगाना बेटा, क्लियर रहो, एकदम मजे में रहो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। और इसमें कुछ खास बात इस क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। ये जो सेविंग है क्वेश्चन नंबर 19 में ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका मतलब होता है ये वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी ये किसका पार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कुछ खास बात है क्या। नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दिया हुआ है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसको इग्नोर कर देना, क्यों इसको इग्नोर कर देना, क्यों इग्नोर कर देना, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो बाकी चीज़ों को देखना ही नहीं है। डिविडेंड को इग्नोर कर देना, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये हो गया मिक्स्ड इनकम, इन सब आइटम्स को ऐड कर देना तो मिल जाएगा NDP@FC। फिर हमको क्या निकालना है, GNP@MP, किससे निकालना है, NDP@FC। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ठीक है। डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, नेशनल मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150 है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा, -150। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रूव दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। अब इस इनकम जनरेटेड का क्या मतलब होता है, इनकम जनरेटेड का मतलब होता है NDP@FC। NDP@FC किससे मिलता है, इनकम मेथड से। ओके जी, ओके। हमको प्रूव करना है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से निकालना और ये कहाँ से निकालना है बहुत इंपॉर्टेंट है। NDP@FC क्लियर पता है कि इनकम मेथड में ये निकलता है, यानी जो इनकम मेथड के डिटेल्स हैं उनसे हम लोग NDP@FC निकाल लेंगे। NVA@FC कैसे निकालेंगे, जो बाकी डिटेल्स दिए हुए हैं वो किसके दिए हुए हैं, वैल्यू एडेड मेथड की। तो वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से हमारा क्या निकलता है, GDP@MP। GDP@MP निकालेंगे और फिर वहां से निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और NDP@FC क्या है, ये है इनकम मेथड। मतलब वो ये बोल रहे हैं आपको कि आप ये बताओ कि जो आप नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे वैल्यू एडेड मेथड से, दैट शुड बी इक्वल टू द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आइए GDP@MP निकालते हैं। सबसे पहले सेल्स कितना है, 10,000 प्लस चेंज इन स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक बोल रहे हैं 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बच्चों अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली यूज होते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल 1650 एंड फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन पावर 850। ओके, GDP@MP निकल के आ जाएगा, यस। अब यहां से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, कैसे, GDP@MP से। सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नेट वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्या होता है, व्हेन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को आप एग्रीगेट कर देते हो, सबको सम कर देते हो, तो वो GDP@MP मतलब NDP@MP मिल जाता है। हमें निकालना है एक तरीके से NDP@FC, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करेंगे, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ओके, यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 500 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमें चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सीधा दिया हुआ, ठीक है। तो ये निकल के आता है हमारा 7200,
₹7200 करोड़। अब हमें निकालना है क्या, एनडीपी एट एफसी। कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ना, रेंट रॉयल्टी तो है नहीं, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट गेन टैक्सेस, ये सारे ऐड हो जाएंगे। ओके ये सारे ऐड हो जाएंगे एंड इट विल ऑल्सो कम इक्वल टू 7200। ओके 15 और ये 2 3 4 5 6 7। Okay, this is coming to 7200. Hence proved that net value added at factor cost is equal to the NDP at FC. NDP at FC कैसे निकाला, इनकम मेथड से। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला, पहले जीडीपी एट एमपी निकाला हमने वैल्यू एडिशन मेथड से एंड फिर वहां से हम लोग गए एनवीए एट एफसी निकालने के लिए। ओके जी, ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको और ब्रेक डाउन करके लिया गया है। एक क्वेश्चन देख लेना, आई एम श्योर बाकी आप कर लोगे। ओके, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। रेंट कितना है 80, रॉयल्टी कितनी है 40, इंटरेस्ट कितना है 130, डिविडेंड कितना है 40, कॉर्पोरेट टैक्स 30, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। ओके, प्रॉफिट आपको पूरा ही दिया हुआ है 100, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, प्रॉफिट आपको पूरा दिया हुआ है 100। ओके, ये है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज इक्वल टू 350 करोड़। ओके ओके, मूविंग ऑन। ओके, क्वेश्चन 26, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रॉयल्टी, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। तो कर दो 220, 320, 370। ऑपरेटिंग सरप्लस इज 370 रुपीज, 370 करोड़। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। देखिए जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। तो पहले वो निकाल लेते हैं जीडीपी एट एमपी से। ग्रॉस दिया हुआ है, नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे हमारा एनडीपी एट एफसी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एनडीपी एट एफसी इज ऑल्सो इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, इग्नोर दिस, इट इज 0। ये पता चल गया, यहां से ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकल जाएगा, सिंपल। ओके, practicals on expenditure method. Let us very quickly revise the concept. Third, expenditure method. सबसे पहले इस मेथड में निकल के आता है GDP at MP. ओके, क्या होता है ये, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, ये इसको देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रॉस लेना है। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसमें हमेशा डेप्रिसिएशन ऐड करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। जीडीसीएफ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये और भी इसका और भी ब्रेकडाउन है बेटा, और भी ब्रेकडाउन है, अभी हड़बड़ाओ मत, तो इसलिए मैंने जीडीसीएफ बोला है, ताकि अगर हमको शॉर्ट फॉर्म भी आता है ना, जीडीसीएफ जीडीसीएफ जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है।
ओके फाइन। इसके दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। कैपिटल फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फिक्स्ड कैपिटल या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, किन दो तरीकों से हो सकता है, या तो फिक्स्ड कैपिटल या फिर इन्वेंट्री। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल है इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। ऊपर क्या थे, पापा कौन है, GDCF, बच्चा कौन है, GFCF, प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री में कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया। ओके ओके, जो GDCF इज इक्वल्स टू GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। अब GFCF भी 3 सेक्शंस में होते हैं, पर यूजुअली न्यूमेरिकल्स में इतना डीप में नहीं जाते हैं। स्टिल मैं आपको बता दूं, क्लास में बताया, वापस बता देती हूँ। GFCF जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है इन्वेस्टमेंट, एक तो वो बेटा कॉन्सेप्ट वाइज बता रही हूँ, ओके। दूसरा प्लस ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतने मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं बता रही हूँ क्योंकि यूजुअली न्यूमेरिकल्स का पार्ट नहीं है। ओके, लेट अस बिगिन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दो पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट GNP एट MP। ओके, कौन सा मेथड, हमको कुछ नहीं पता। जो डिटेल दिए मैं उसमें से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या मिलता है, GDP एट MP इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक GD कैपिटल फॉर्मेशन GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब GDCF क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विच इज दिस GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक मत लिखना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही लिखना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, सो कम लेट अस बिगिन। प्राइवेट कंजम्पशन है हमारा 27,500 प्लस गवर्नमेंट है 3,000 प्लस GFCF है 2,500 प्लस चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है फॉल इन स्टॉक, यानी जब हम चेंज इन स्टॉक बात करेंगे तो ये फॉल इन स्टॉक बन जाएगा हमारा -300। क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है इसीलिए -300 प्लस नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है 450, इम्पोर्ट कितना है 500। चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। $33,000 माइनस 350। ठीक है, फटाफट बताओ। हाँ जी, और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग को निकालना है GNP एट MP 32,650। अब हम लोग को निकालना है GNP एट MP फ्रॉम GDP एट MP, यानी ग्रॉस ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि -250 है। तो जो ये वैल्यू आई है ना इसमें -250 कर दो और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है, विच इज इक्वल्स टू ₹32,400 crores। ओके जी, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 28, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये ही पूरा चीज़ है। ठीक है, और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन में नहीं जाना है। चेंज इन स्टॉक की ज़रूरत नहीं है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट नेशनल इनकम। बार बार मैं चीख कर बता चुकी हूँ, नेशनल इनकम इज NNP एट FC। ओके जी, ओके। सो मूविंग ऑन,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सीधा सीधा दिया हुआ नेट एक्सपोर्ट। बेटा इन चारों चीजों को ऐड करो, आ जाएगा हमारा GDP एट MP। फिर यहाँ से NNP एट FC निकाल लो। कैसे? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डोमेस्टिक में से नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। ठीक है जी, वो भी दिया हुआ है। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो। बेटा सब कुछ सीधा सीधा दिया हुआ है, फाटाफाटिस करते जाओ, मजे लेते जाओ। आ जाओ मिसलेनियस प्रैक्टिकल में, क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। बेटा NNP एट FC। ओके, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड कौन सा वाला हुआ? इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDP एट FC। और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? GDP एट MP। इन दोनों से हमको क्या निकालना है? NNP एट FC। चलो सबसे पहले NDP एट FC निकालते हैं फाटाफाटिस। इनकम मेथड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000 ऐड करते चलो, मैं बता रही हूँ। 1000 प्लस 1000 कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, कैलकुलेट करते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऐड करो प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है क्या? मिक्स्ड इनकम नहीं है। बस इतना हो जाएगा क्या? NDP एट FC 150 प्लस 250 विच इज इक्वल टू 400 प्लस 640 1040 प्लस 1000 2040। इससे क्या निकालना है? NNP एट FC। क्या करेंगे? NDP में क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि कहाँ गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखते हैं आप। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30 है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? -30। -30 कर दो तो आ जाएगा आंसर 2010। देखिए जी, यही आंसर है। अब हम देखेंगे GDP एट MP। GDP एट MP कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है, 2000 हो गया, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों हमने बोला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन विच इज इक्वल्स टू 340 प्लस 50 390। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट 40, तो ये क्या हो जाएगा? 2050। क्या यहाँ पे 2000 था ना, फिर यहाँ पर आए हम तो हमारा ये 390 हो गया, नेट एक्सपोर्ट 40 है तो ये 350 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2350। अब हम लोग को निकालना है NNP एट FC। क्या करेंगे? GDP में NNP है ना, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 50, NNP है ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी माइनस में है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हम लोग क्या रिड्यूस कर देंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 60, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों? ये 2150, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो ये आ गया आंसर। देख लीजिए। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 33 है। कुछ खास बात है क्या इसमें? मैं देख लेती हूँ। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है अगेन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड से बोला। ओके, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो बेटा ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट 35, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सम है, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, और पेन कहाँ चला गया? ओके, सो what do you have to find out? National income NNP at FC by income method and expenditure method। पहले expenditure method देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ अलग बात है। expenditure method,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या है। ये रहा हाउस होल्ड का। एक और पॉइंट दिया हुआ है, फाइनल कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट NPI and non-profit institutions serving households. This will also be a part of private consumption. Okay, this will also be treated as a private consumption. तो ये हो जाएगा 26,300 plus government final consumption expenditure 11,200 plus gross domestic capital formation. यहाँ हमको दिया हुआ है फिक्स्ड डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, बेटा पूरा फॉर्मूला लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज बार बार समझो इस बात को। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है 600 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक विच इज इक्वल टू 100। ओके जी, प्लस 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स कितना दिया हुआ है 200 इन माइनस, तो इसको -200 कर देंगे। ओके जी, इससे हमको क्या मिलेगा GDP एट MP, फिर नेशनल इनकम निकाल लेंगे। अच्छा, इनकम मेथड में क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, कर देंगे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे, रेंट ऐड कर देंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है बच्चों, मैंने कहा प्रॉफिट लेना है बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस दिस कॉर्पोरेट टैक्स विच इज इक्वल टू 4,200। ये वाला प्रॉफिट लेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड कर देंगे। ओके जी, प्लस जो आ जाएगा वो आ जाएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं दिया हुआ, दैट्स इट। ओके, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इनकम मेथड से क्या मिलेगा NDP एट FC, फिर नेशनल इनकम निकाल लेंगे। ओके, 37 कुछ खास बात है क्या इसमें, मिक्स्ड इनकम है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 38 39 कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में। बेटा फिर आते हैं आपके बाद में CBSE में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं एंड दे आर वेरी सिंपल। ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड फटाफट, पता है, बिना फॉर्मूला लेके कैल्सी में या फिर रफली ऐसे ही शुरू कर दो कैलकुलेट करना और मुझे करके बताओ कहाँ पर डाउट है। किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, आई विल हेल्प यू। एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट बच्चों, सिलेबस, सब्जेक्ट्स बहुत सारे, सिलेबस बहुत सारा है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, प्लीज स्टिक to those questions which are most probable to come in the exams. What I mean is this, that please stick to Mr. Sandeep Garg's book, okay, because it is self sufficient, बहुत inclusive है, इससे बाहर बहुत कम उम्मीद है कि यार अगर आएगा भी तो इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होगे कि आप आराम से वो सॉल्व कर लोगे। ओके, stay safe, keep studying, stay tuned, all the best.